in the name of Employment Guarantee Scheme, directed by Vasantrao Naik as Chief Minister and V.S. Page as a person who introduced the idea. That idea clicked so much that it generated not only the jobs, local jobs, it also created a lot of positive, productive work in rural areas, like small dams and so forth. As a result, the idea was actually appreciated even by the World Bank. In late 90s or late 80s rather, so under Sonia Gandhi's leadership of the party, Dr. Manmohan Singh introduced as a Prime Minister Manrega scheme, that is Mahatma Gandhi Rural Employment. And when that scheme was introduced, it became a national scheme, which was originally only Maharashtra scheme. Of course, Manrega had many other features than the employment guarantee scheme of Maharashtra. And it spread far and wide, and each state competed with other state has to do performance better than the other state on employment guarantee. Now the idea, your question was whether it can really solve the problem. It can solve the problem, not completely. 100% employment is an utopian idea. It is not possible for a country as large as this and demographically as of today's size. But that doesn't mean there should be starvation. That doesn't mean there should be poverty and below poverty line people who cannot feed. Everybody has a right to survive. Everybody has a right to food. Everybody has a right to education. Everybody has a right to survive in hostile circumstances. So Mahatma Gandhi Employment Guarantee Scheme actually created that atmosphere across the country so that nobody can starve and nobody can completely get ignored by the system. In fact, it was possible to get inclusive attitude to the entire employment scheme and economy. So Mahatma Gandhi Employment Scheme, Manrega, actually helped people in the rural areas, particularly the youth, but also middle-aged persons, to integrate themselves with the overall economy and overall productive work. Now, when they got introduced to a mainstream economy, obviously the production went up, the wages went up, and the lifestyle in rural area also began to change. In fact, much of the prosperity is not a correct word, but better life that we saw in the late 90s, that was primarily or early 20th, 21st century, was primarily because of Manrega. Now, Manrega was financed by the central government. Now, because of Manrega, not only food rations were available, the wages were available, and the families could actually really create some work and some relaxation also, because 100 days was the compulsory or minimum requirement. Now, the point is, where did this idea come from? Let us not presume that only Indians are capable of thinking like this. Similar idea had been practiced in Soviet Russia in the 1930s, in America in late 1920s, like when the New Deal occurred. So during New Deal and during Russia's redevelopment plan, it was possible to one can locate actual historical references of employment guarantee scheme. However, Indian scheme is quite different in the sense Indian conditions are different. Indian farming is different. Indian demography is different. After all, with Russia, with hardly any more than less than 30 crore population, and America less than 25 crore population at that time, the problem was not as huge, as humongous as the Indian problem was. And Indian farming was quite backward in terms of its availability of fertilizers, water, and a lot of rain shadow areas in many parts of the country could not really do any farming as such. So Manrega helped them do a lot of work, productive work, and actually create small dams and similar roads and similar other things, which further helped economy to grow. So Manrega helped create roads, create small dams, and create conditions of atmospheric conditions of the local economy regeneration. So Mahatma Gandhi Yojana is not only to provide employment or to provide wages. It is not just any other welfare scheme. It is an effort to integrate the entire rural economy into major forces of economy. Now, that is, according to me, the significance of Mahatma Gandhi
rural employment. Now, the name Mahatma Gandhi came because Mahatma Gandhi was the man who introduced the concept that we must work for the last man. We must work for the last man. Any government or political party like Congress should attend to the last man. Now, how do you attend to the last man? It is not providing some industrial workforce and employ them in industry or generate a huge white collar bureaucracy and employ them as peons or something like that. It is necessary to give them jobs which are productive. And those productive jobs will help them not only in working in a very positive way, but also earn income for the family. So Mahatma Gandhi Yojana is not a welfare scheme as such. It is much more than economic measure to create better conditions of life, better conditions of work, better atmospheric situation in the rural areas. Actually, it also helped environment because now we are facing climate change. But in 1973-74, nobody discussed climate change. Even in 1990s, the issue of climate change was discussed, but was not as important as today. Mahatma Gandhi Yojana actually created so many projects which were actually environment friendly. And because of their environment friendly approach, even that scheme really helped create climate satisfaction for the people, climate compatibility for the people. So Mahatma Gandhi Yojana should not be seen as just a welfare measure created by Manmohan Singh and Sonia Gandhi's copying of Maharashtra Employment Guarantee Scheme, but actually it is a very comprehensive economic, social, and cultural idea. I will not include politics in it because Mahatma Gandhi Yojana was beyond politics. It was more a humanistic approach to the rural development. Now, the last point, this government has removed the name Mahatma Gandhi from the scheme. No, I don't understand why. Because Mahatma Gandhi did not start the scheme. Mahatma Gandhi's idea was only to help the last man. But Mahatma Gandhi's name actually was introduced because it was the idea of Mahatma Gandhi to look at the comprehensively look at the economy and comprehensively look at the poor man's life. So Mahatma Gandhi's name signified, Mahatma Gandhi's name symbolized the notion of utopian idea, utopian welfarist idea, and utopian not allowing utopia to remain utopia, but actually bring it on the earth. So Mahatma Gandhi Yojana was a multifaceted, comprehensive scheme for enrichment of the rural area, enrichment of the farming community, enrichment of the climate, enrichment of the land, and enrichment of the water resources. All that was incorporated by Mahatma Gandhi. And therefore, to change the name of Mahatma Gandhi and introduce a new name called Ram in the Yojana is, I think, nothing but communalize the Yojana, communalize the scheme, and not only communalize scheme, it introduced a very polarized politics into the scheme, which had nothing to do with politics and nothing to do with religion or any such idea. Idea was to generate welfare schemes in rural areas. So, to be briefly stating that Mahatma Gandhi Yojana was a comprehensive economic, social, cultural idea. Thank you. Thank you so much, sir. Your experience backed by factual words were really enlightening for us. But can you please, if you feel so, give like a few words you can say in Hindi so that the message could reach our Hindi-speaking audience? I could get the question properly. You're not audible. Yeah. I'm so sorry, sir. I'm just saying that if possible, if you could translate a few lines in Hindi so that the message could reach our Hindi-speaking audience connected right now, so we would be really grateful. Well, जिसको हम महात्मा गांधी के मनरेगा योजना से जानते हैं, वो योजना क्या है? वो योजना सिर्फ ग्रामीण भारत को रिच बनाना, ग्रामीण भारत को पॉवर्टी ट्रैप से बाहर निकालना और ग्रामीण बेरोजगारों को जॉब देना इतना ही नहीं है. महात्मा गांधी मनरेगा योजना ये बहु 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 सांस्कृतिक और बहु सामाजिक और बहु आर्थिक तरह की एक योजना है जिससे ग्रामीण जो सेक्शंस है वो मेन इकोनॉमी जुट जाते हैं और मेन अर्थव्यवस्था में जुट जाने के लिए
उनको तीन चीज चाहिए। एक चाहिए तो उनको इनकम, दूसरी चीज चाहिए जॉब, और तीसरी चीज प्रोडक्टिव वर्क। तो महात्मा गांधी योजना से प्रोडक्टिव वर्क भी मिलता था, लोगों को जॉब भी मिलता था, और उनको इनकम भी होता था। इसके लिए उनकी डेली वर्क और डेली अर्निंग्स was improving. So it was also a family welfare scheme. It was also a rural welfare scheme. But it should not be translated and understood only in terms of welfareism. It is not welfareism. It was an overall macro economic, एक मैक्रो बड़ी अर्थव्यवस्था का एक भाग था। और मनरेगा, महात्मा गांधी योजना, एक बड़ी अर्थव्यवस्था का भाग इसके लिए बनाया गया था क्योंकि महात्मा गांधी सबसे पहले कहते थे कि अपनी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन ग्रामीण भाग जो है वो उधर ही रह रहा है। ग्रामीण भाग में तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिसको आप डेवलपमेंट कहते हैं, विकास कहते हैं, वो ग्रामीण में जाता नहीं है। वो ग्रामीण में जाने के लिए ग्रामीण विभाग को शहरी विभागों से, टोटल भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ना चाहिए। और वो जुड़ने के लिए कौन से क्या हो सकता है? उधर तो कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं जा सकती है, बड़े कारखाने नहीं जा सकते हैं, कोई बड़ी ब्यूरोक्रेसी नहीं जा सकती है। तो उस उधर के लोगों को इस तरह से जॉब देना, इस तरह से इनकम देना कि वो जुट जाएंगे। तो महात्मा गांधी स्कीम वॉज नॉट मियरली टू प्रोवाइड जॉब्स। बहुत सारे लोगों को लगता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी है उसके अंदर, मतलब वो जॉब्स का है। वो जॉब्स का नहीं है, पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी एक योजना का वो एक भाग है। और वो भाग समझने के लिए महात्मा गांधी का नाम इसके लिए लिया था क्योंकि महात्मा गांधी पहले से कहते थे। महात्मा गांधी का देहांत तो 1948 में उनके हत्या से हुआ, लेकिन महात्मा गांधी की जो आइडिया थी कि आपका अभी स्वतंत्रता मिल गई है, तो स्वतंत्रता मिलने के बाद वो जो ग्रामीण खेती करने वाला आदमी है उसके पास आपकी योजना, आपका विकास का प्लान जाना चाहिए। वो प्लान जाने के लिए जो योजना बनाई गई, बाद में पहले वो महाराष्ट्र में बनी थी, बाद में वो सेंट्रल में बन गई, जिसका वर्ल्ड बैंक ने भी जिक्र किया। वो योजना बनने का कारण महात्मा गांधी की प्रेरणा थी। महात्मा गांधी ने सुझाव नहीं दिया था, लेकिन महात्मा गांधी की प्रेरणा की वजह उनका नाम दे दिया था मनरेगा। और वो अभी का जो सरकार है, अभी को जो शासन है मोदी का, उन्होंने महात्मा गांधी नाम उधर से निकाल दिया है और बाकी राम वगैरह नाम डाल के वो स्कीम का पोजीशन बदल दिया है। वो स्कीम का सिर्फ पोजीशन नहीं बदलता है, उससे वो स्कीम का कंटेंट बदलता है, उसका आशय बदलता है। और इसके लिए महात्मा गांधी का नाम ही रखना चाहिए उसके ऊपर, क्योंकि उससे उसका जो आशय है वो लोगों तक पहुंच सकता है। Thank you so much, sir. We are very grateful to have you. We also have with us Dr. Sudarshan Iyengar, sir, who is a distinguished Gandhian economist and former Vice Chancellor of Gujarat Vidyapeeth, founded by Mahatma Gandhi. He has contributed extensively to research on natural resources management, community development, and Gandhian philosophy. With over 70 plus publications and several books, his work continues to inspire socially responsible development. I would request Sir to also please share his insights on today's topic. I think due to some technical issue, he left Sudarshan sir. So we can go ahead and see the question answers. Yes, sir. We can just move on. So, for the information of participants, the forum is now open for Q&A session. You can ask your questions to our guest for today. You can post them in chat box or you can just raise your hands. The host would unmute you and you can ask your question. We had also received some questions, sir, prior to this session, so I would be asking them on the behalf of the participants who have shared them. So the first question is by participant named Arjun Verma from Lucknow. He says, asks in Hindi, आज के समय में जब युवाओं में निराशा और भ्रम बढ़ रहा है, ऐसे में गांधीवादी विचारधारा उन्हें समाज परिवर्तन के लिए कैसे प्रेरित कर सकती है? मुझे लगता है आप गांधी जी का जो कार्यकाल है उसकी तरफ देखिए, उधर तो निराशा ही निराशा थी। ब्रिटिशों का राज था। ब्रिटिश अभी बहुत ब्रूटल हो गए थे आफ्टर 1919 जालियनवाला बाग, एंड द पीपल वेर not having any hope at all in life.
तो जब पूरी आशा खत्म हो गई थी बिटवीन 1919 एंड 1930s, गांधी जी ने इस तरह से मूवमेंट चलाया। अभी देखो, गांधी जी ऐसे एक ही नेता है दुनिया में, नेता भी मैं नहीं कहना चाहता, एक ही सेंट मैं कहूंगा, एक ही है दुनिया में ऐसे कि जिन्होंने अहिंसा का व्रत लिया। क्योंकि दुनिया में तब कौन सी चर्चा चल रही थी? 1922 और 1933 में हिटलर आ गए थे पावर में, और 1922 1924 में रशिया में स्टालिन थे, और पूरा जो माहौल था महाराष्ट्र और देश में भी हिंसा का भी चर्चा चल रहा था, हिंसा की आइडियोलॉजी चल रही थी, हिंसा का विचार डोमिनेंट था। तब गांधी जी ने अहिंसा का विचार कहा है। जब हिंसा की सब दूर चर्चा है, हिंसा ही एक आइडियोलॉजी बन गई है, तब गांधी जी कहते हैं नहीं, अहिंसा से जाएंगे। और अहिंसक लोगों को लगता है क्या ठीक है, अहिंसा का मतलब आप मत मारो, उनको कुछ भी करने दो, आप चुप बैठो। अहिंसा का मतलब ये नहीं था। गांधी जी के विचार का मतलब ये था कि आप कितनी भी निराशा परिस्थिति में हो, आप आशावादी हो सकते हैं, और आशावादी तभी हो सकते हैं जब आपका कन्विक्शन अभी के वर्तमान काल में है और फ्यूचर में भी है, फ्यूचर में हिंसा चलने वाली नहीं है, और यही उनका मानना था, और उन्होंने यही विचार दिया। समझो कि गांधी जी नहीं है, गांधी जी नहीं होते भारत के स्वतंत्र आंदोलन में, तो हम किसका नेतृत्व स्वीकारने वाले थे? सुभाष चंद्र बोस का, सावरकर का? क्योंकि वो तो दोनों हिंसा में विश्वास करते थे। और वो, इसका मतलब ये नहीं कि वो उनके इंटेंशन, सावरकर के छोड़ो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के इंटेंशन तो फ्रीडम के लिए थे, लेकिन जो मार्ग चुना था, गांधी जी ने जो मार्ग चुना था, उस मार्ग से पूरे दुनिया के और पूरे भारत के सब राज्यों के, सब धर्मों के लोग इकट्ठा हो सके। आप हिंसा का मार्ग लेते तो सिर्फ योग, तब के युवकों के अंदर जो लड़ाऊ एटीट्यूड के थे, वही वो मूवमेंट में जा सकते थे। महात्मा गांधी ने हर एक दुर्बल आदमी को भी बल दिया और मूवमेंट में लाया। तो महात्मा गांधी का विचार का मतलब यही है कि आप निराशा से लड़ सकते हैं, सिर्फ आशावाद से नहीं, बट विचार से। और वो विचार क्या होना चाहिए? वो विचार भविष्यवादी, पूरी तरह सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए, खुद की तरह आत्मकेंद्रित नहीं होना चाहिए, लोगों की तरफ। और सबसे इम्पोर्टेंट, लास्ट मैन, जो अपने से भी ज्यादा दुखी है, अपने से भी ज्यादा कष्ट है, उसको देखकर उसको उससे मुक्ति लाने के लिए काम करना चाहिए। यही एक आशा निराशा को फाइट कर सकती है। सर, हमारे साथ विवेक जी जुड़े हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। लेकिन सुदर्शन जी भी है ना? सुदर्शन सर ज्वाइन एक्चुअली कर नहीं पा रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। वो आए थे बट उनको लीव करना पड़ा था। वो ओके। अगर जुड़ते हैं तो ऑब्वियसली वील हेयर हिम, बट अभी के लिए विवेक सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्लीज। सर नमस्ते। सर मनरेगा को वीबी जी राम जी में बदलने के पीछे जो कारण है वो सिर्फ नाम का बदलाव है, या अधिकार आधारित जो गारंटी है उसे खत्म करने की भी कोशिश है? इस पर सर कुछ आप। बेसिकली वो सिर्फ खत्म करने की योजना जो है ना, वो महात्मा गांधी को ही खत्म करने की योजना है। महात्मा गांधी नाम के नहीं, महात्मा गांधी और फ्रीडम मूवमेंट, इसका जो रिश्ता है, जिसके वजह आज हम जिस कंडीशन में वो आ गए हैं, तो महात्मा गांधी का नाम और महात्मा गांधी के विचार खत्म करने की जो स्टेप्स, बहुत सारी स्टेप्स 15 बरस में ली है, उसमें का एक इम्पोर्टेंट स्टेप महात्मा गांधी योजना का नाम बदलने का है। राम नाम दिया, इसका मतलब राम के भक्त नहीं होते हैं, राम का सवाल ही नहीं आता इसके अंदर। उन्होंने राम मंदिर भी बनाया और इसमें भी राम लाया, उसमें राम का प्रेम नहीं है, राम के बारे में भक्ति नहीं है। ये सब महात्मा गांधी को हटाने के लिए अभी एक दिन ऐसा आएगा कि वो इसके ऊपर भी अपनी करेंसी नोट के ऊपर जो गांधी जी है वो भी हटा लेंगे। उनको तो वो भी हटाना है। और उनको तो अभी सिर्फ एक चश्मा देके उनको आत्मनिर्भर बनाया है स्वच्छ अभियान, बाकी कुछ नहीं। उनको गांधी को पूरा हटाना है, ये शुरुआत है। और गांधी जी के स्टैचू तो अभी भी उड़ा रहे हैं बहुत जगह, तो स्टैचू निकालना ये भी एक पूरी फ्रीडम मूवमेंट जो है, 1915 में गांधी जी महाराष्ट्र में आए, भारत में आए, तब से लेकर अभी तक
2014 तक जो उनका प्रभाव रहा, वो प्रभाव खत्म करने के लिए 2014 से नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, उसका ये एक भाग। Thank you, sir. Another question we have from a participant named Rohit Kumar from Patna. वो पूछते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे आंदोलन शुरू होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। क्या स्थायी और प्रभावी आंदोलन बनाने के लिए कोई खास रणनीति होनी चाहिए? स्थायी और प्रभावी आंदोलन मुझे तो लगता है सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन में ही था। उसके बाद जो जो आंदोलन है उसकी टाइम लिमिट पड़ी है। कोई भी आंदोलन हो, कम्युनिस्ट आंदोलन हो, सोशलिस्ट आंदोलन हो, कोई भी आंदोलन सीमित ही हुआ है। लेकिन तब की सीमित का काल महीना, 2 महीने, बरस तक होता था। आजकल वो 2-3 दिन, 5 दिन, 1 वीक का होता है। इसका कारण यह है कि आज के जो इश्यूज है और आज के लोगों के, विशेषतः यूथ के जो माइंडसेट है, वो जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलते हैं, उनको एवरी वीक, एवरी डे नई नई स्टिमुली मिलती है, नया नया कल्पना आता है, नए नए प्रॉब्लम आते हैं सामने, और नई नई चर्चा होती है। इतनी चर्चा उस जमाने में होती नहीं थी, इतने स्टिमुली नहीं होते थे, हाथ में मोबाइल नहीं था और हाथ मीडिया इतना पावरफुल नहीं था। अभी पावरफुल मीडिया, हाथ में मोबाइल और आपके स्टिमुली, आपको हर एक टाइम अलग अलग आइडिया का सोच देना, ये सब पहले नहीं था। इसके वजह आपको स्थायी आंदोलन करना है तो एक आइडिया लेके काम करना चाहिए। अभी आंदोलन से नहीं होगा, सिर्फ काम पे होगा। तो अभी स्थायी काम हो सकता है, स्थायी आंदोलन नहीं हो सकता। और स्थायी काम करने के लिए स्थायी संस्था और स्थायी विचार, इसकी जरूरत है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे साथ पार्टिसिपेंट नीतू जी कर जुड़े हैं। वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। मैम, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? सर नमस्कार। नमस्कार। सर समस्या तो देखी जाए तो सर 3-4 सालों में बहुत सारी दिखाई दे रही है सर, लेकिन उन समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें किस किस तरीके का क्या सोल्यूशन निकलता है? क्या आप कुछ सुझाव दे सकते हैं? हर एक समस्या अलग अलग है। कोई फैमिली में जो समस्या है वो एक तरह की है, समाज में जो है वो एक तरह की है, जाति की समस्या है वो एक तरफ, एक है, बेरोजगारी की आर्थिक समस्या है वो अलग है, और धर्मांध प्रचार हो जाए और इसके लिए वो हिंदू मुस्लिम ऐसा जो भेद है वो एक अलग समस्या है। तो समस्या बहुत सारी है। हर एक समस्या का एक ही उत्तर नहीं हो सकता है, लेकिन एक भाग हो सकता है। हम किसी की तरफ नफरत नहीं करेंगे तो फैमिली के अंदर, समाज के अंदर, धर्म के अंदर और जाति के अंदर नफरत नहीं है तो वो समस्या का एक मेन सॉल्यूशन है। लेकिन सिर्फ उससे सब समस्याएं सुलझाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है मुझे। हर एक समस्या के लिए अलग अलग सॉल्यूशन होगा, लेकिन उसका जो बेस है वो बेस लाइफ विदाउट नफरत, नफरत नहीं होनी चाहिए। ये समस्या का पहला जरूरी सुझाव है। जी धन्यवाद सर। धनंजय जी, आप भी अपना सवाल या अपना सजेशन सर से शेयर कर सकते हैं प्लीज। जी नमस्कार सर। आपकी बात बहुत खास है। थैंक्स आप इस चर्चा में हम लोगों को समय देने के लिए। हम मनरेगा पर जो हम बनारस से हैं, धनंजय नाम है हमारा। मनरेगा पर जो इधर कुछ काम हुए हैं, कुछ साथी इकट्ठा भी हुए हैं, हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। संभवतः वो एक मनरेगा यात्रा भी निकली थी, हम अपने साथियों ने ही लीड किया था, बीएचयू से जुड़े हुए कुछ साथियों ने। और उसके अलावा भी मनरेगा पर जुड़े हुए बनारस में कुछ संगठनों के साथ हम लोगों का काम है। एक अनुभव है जो कि सिवाय सिर्फ बीजेपी पर उसकी आलोचना नहीं जाती है, उसमें हमको ये दिखाई देता है। इस पर आपका इंसाइट जानना चाहेंगे कि जैसे संविधान प्रस्तावना लेकर हम लोग घूमते हैं, लेकिन ग्राउंड पर अगर उस प्रस्तावना के प्रति कोई आस्था न हो, उसमें अगर हम धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद इत्यादि के बारे में बात करते हैं, ये बाबा साहब ने दिया, ये गांधी ने दिया, बट अगर उस ग्राउंड पर जो आदमी है, जब वो
पुलिस थाने जाता है, कचहरी जाता है, तमाम अन्य जगहों पे जाता है, तो उसको दिखता है कि समाजवाद कहीं दिखेगा नहीं या धर्मनिरपेक्षता नहीं दिख रही है, तो उसको उस प्रस्तावना की लड़ाई में कुछ होप नहीं दिखता है। ठीक वैसा ही अनुभव हम अपना महसूस कर पा रहे हैं। ग्राउंडेड अनुभव से हम एक चीज आपको शेयर कर रहे हैं। यूपी में पूर्वांचल के जिलों में जो मनरेगा का काम है, उस काम के प्रति आम मजदूरों का ये फीडबैक रहा है कि उनको काम चाहिए। उन्होंने कहा कि मनरेगा तो ऑलरेडी बंद हो चुका था। जब हम उनसे ये कह रहे हैं कि 14 में बीजेपी आई है तब हुआ है क्या, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 14 के पहले से बंद हुआ पड़ा है। काम नहीं मिलता है, काम का दाम नहीं मिलता है, दाम मिलता है तो भ्रष्टाचार है। तो उस कानून को बचाने की जो लड़ाई है, उसमें उन मजदूरों का जो इन्वॉल्वमेंट हो सकता था, वो होता हुआ हम लोगों को दिखाई नहीं दिया। ओवरऑल जो मनरेगा की लड़ाई है, उसमें हम सब साथी हैं, साथ हैं, बट उसके बावजूद हम ये सवाल आप साथ शेयर करना चाहते हैं कि मजदूर को काम, काम का दाम और दाम से जुड़ा हुआ जो भ्रष्टाचार है, इन तीनों चारों पहलुओं पर उनको एक असहमति थी, असहजता सी थी मजदूरों के बीच। जी ये शुक्रिया। आपका जो सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत वास्तववादी भी है। ये सिचुएशन सिर्फ यूपी में नहीं, बनारस में नहीं, पूरे देश में हुई, क्योंकि अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, उसकी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, महात्मा गांधी एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम चलाना। अभी वो ब्यूरोक्रेसी जो है, वो ब्यूरोक्रेसी में इतना करप्शन है और इतनी इनसेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता ही नहीं है, तब उसमें नेचुरली भ्रष्टाचार जाता है। भ्रष्टाचार का मूल कारण जो है वो संवेदनशीलता न होना। नहीं तो देखो, इसी तरफ से मैं पूछता हूँ, जब ब्रिटिशों का राज था, गांधी जी की मूवमेंट चल रही थी, तो कोई मनरेगा नहीं था, नरेगा नहीं था, कुछ नहीं था, एम्प्लॉयमेंट गारंटी नहीं थी, संविधान भी नहीं था, संविधान भी नहीं, गारंटी नहीं, कोई भी नहीं, और ब्रिटिशों का ब्रूटल राज। फिर भी वो लोगों ने आशा नहीं तोड़ी, क्योंकि उनका एक विश्वास था कि हम हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है वो पार करेंगे। तब ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, नौकरशाही नहीं थी। अभी क्या है कि आइडिया जो होती है, वो आइडिया के पीछे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नौकरशाही होती है, एक ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी जब तक सेंसिटाइज नहीं होती, जब तक ब्यूरोक्रेसी संवेदनशील नहीं बनती, तब तक कोई भी प्रॉब्लम छूटेगा नहीं। अब ब्यूरोक्रेसी कैसे संवेदनशील बनेगी? तो वहां के जो लोग हैं, वो लोगों ने वहां उसी टाइम उसी के बारे में एक संगठन तैयार करके आंदोलन छेड़ना चाहिए। वो आंदोलन कोई 20 वर्ष 15 वर्ष चलने की जरूरत नहीं है। वो आंदोलन वही इश्यू पे, वही एरिया में, वही टाइम में होना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को भ्रष्टाचार करने से रुकाना चाहिए। ये हो सकता है, महाराष्ट्र में बहुत जगह हुआ है और बाहर बहुत जगह भ्रष्टाचार को निकाला गया है लोगों की संगठन से, लोगों के छोटे मोटे आंदोलन से। लेकिन वो नहीं होगा और लोग सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर, नौकरशाही के ऊपर डिपेंड करेंगे। हमको 100 दिन का तनख्वाह मिल रहा है, ठीक है, बस है, गवर्नमेंट का है, और गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो करप्शन हो रहा है। तो करप्शन के बारे में चर्चा करो, चर्चा करने से नहीं होगा। संगठन बांध के लोकल एरिया में वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो नेशनल इंप्लीमेंटेशन का सवाल नहीं है, लोकल इंप्लीमेंटेशन का सवाल है। थैंक यू सर। हमारे पास बस दो सवाल और है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। एक सवाल हमारे पास राहुल यादव जी जो वाराणसी से, उनकी तरफ से। वो पूछते हैं कि मनरेगा योजना की आज के समय में सबसे बड़ी जरूरत और महत्व क्या है? आपकी स्पीच में हमें आंसर मिल चुका था, बट अगर आप एक ब्रीफ दे दे प्लीज हमारे पार्टिसिपेंट के लिए तो। नहीं, अभी जरूरत जो है वो बहुत सारे प्रोडक्टिव वर्क बंद हो गए। अभी यूपी की बात करो तो इतने बाढ़ होते हैं और वो बाढ़ से बहुत सारे ग्रामीण विभाग पानी के अंदर जाते हैं, और आसाम में भी ऐसे ही बाढ़ आते हैं, और महाराष्ट्र में उल्टी स्थिति है। महाराष्ट्र में बाढ़ से ज्यादा फैमिन होता है, ड्राउट होता है, मतलब दुष्काल होता है, बरसात नहीं होती है। तो हर एक जगह के प्रॉब्लम अलग अलग है। तो आपको यूपी में, आप वाराणसी से है, आपको यूपी में ये देखना होगा कि यूपी के अंदर कौन से काम गाँव में हो सकते हैं जिससे बाढ़ की कंडीशन, बरसात की कंडीशन और ये सब कंडीशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। उसके लिए जो काम करना है वो काम महात्मा गांधी योजना के अंदर ला सकते हैं। अभी ब्यूरोक्रेसी क्या करती है? नौकरशाही ये नहीं करती। नौकरशाही वो उस कंडीशन को देख के नहीं काम करती है। नौकरशाही
सिर्फ एक बोला है काम वो करो काम, इस तरह के काम लेती है। आपको गांव में डिसाइड करना चाहिए पंचायत की तरफ से कि हमारे गांव में ये काम होना चाहिए और ये काम के लिए योजना, रोजगार योजना बनानी चाहिए, यूज करनी चाहिए। ये आपको ही तय करना पड़ेगा, लोगों को। आपको मतलब आप इंडिविजुअल नहीं, पूरे गांव या पूरे तालुका को, पूरा जिला भी नहीं कह रहा हूँ, पूरे एरिया को, जिस एरिया में वो काम चल रहे हैं। लेकिन वो आप नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी से वो काम होने वाला नहीं, फिर भ्रष्टाचारी होगा। तो ये लास्ट सवाल हमारे पास नेहा सिंह जी भोपाल से पूछ रहे हैं, क्या मनरेगा ग्रामीण युवाओं को रोजगार देने में वास्तव में आज मदद कर पा रहा है? बहुत जगह कर पा रहा है, कर पा रहा था, लेकिन 2-3 बरस के बीच 2024 के बाद कम हो गया है। और उसके लिए गवर्नमेंट को प्रेशर करना चाहिए, वो सांसदों में करना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में करना चाहिए, वो सब जगह में करना चाहिए और गवर्नमेंट को फोर्स करना चाहिए कि ये स्कीम चालू रखो और इसके वजह काम उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिकल वर्क है, वो डिमांड पॉलिटिकल है, स्कीम पॉलिटिकल नहीं है, डिमांड पॉलिटिकल। Can we end? So we have one last participant raising her hand. कीर्ति जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं, then sir we can formally conclude. Yeah. कीर्ति जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, आप प्लीज सर से अपना सवाल पूछ सकते हैं। है तो पूछो, ये लास्ट सवाल है ना। जी, मुझे पूछना था रूरल डेवलपमेंट के लिए आजकल के युवाओं को देश और समाज के लिए क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी क्या काम है जो हमको करना चाहिए? सबसे जरूरी है कि संवेदनशीलता रखना। आपके गांव में, आपके एरिया में, आपके कम्युनिटी में, आपके कॉलोनी में जो नफरत का बाजार पैदा हुआ है उसको रुकना, और उसको रुकने के बाद ही एम्प्लॉयमेंट गारंटी का काम हो सकता है। लेकिन नफरत रखेंगे और बाकी कोई काम करने की कोशिश करेंगे तो होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि वो जो राहुल गांधी ने कहा था कि नफरत छोड़ो, वो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। और वो पॉलिटिकल वर्क नहीं है, वो सोशल, कल्चरल और फिलोसॉफिकल वर्क है। लेकिन आज के युवाओं के बारे में मैं कह सकता हूँ कि वो फिलोसॉफिकल इश्यूज के लिए, कल्चरल इश्यूज के लिए ज्यादा ध्यान देते नहीं है। वो तो मंदिर, मस्जिद और धर्म, इसके ऊपर और सुपरस्टिशन के बारे में, अंधश्रद्धा के बारे में ज्यादा सोचते हैं। उनको अंधश्रद्धा से मुक्त करना चाहिए, उनको संवेदनशील रहना चाहिए। पूरे समाज को, कोई भी धर्म, कोई भी जात से नफरत नहीं होना चाहिए। लेकिन ये आज की युवा कितने जानते हैं, कितना प्रयत्न करते हैं, मुझे मालूम नहीं है। हमारे यहाँ तो होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ भी बहुत वो प्रयत्न यशस्वी हुआ है। लेकिन कोशिश तो जारी है और निराशा तो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर हेयरिंग अस ऑल पेशेंटली। वी आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने हमसे जुड़ने के लिए आज वक्त निकाला है। थैंक यू सो मच सर, ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू विशाल जी एंड जितेंद्र जी। I would be thankful to all the participants जो भी लोग आज हमसे जुड़े हैं, उनको भी आई एम वेरी थैंकफुल ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम। एंड हमारे यूथ फॉर ट्रूथ से रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चैट बॉक्स में मिल सकती है। और हम लोगों को बहुत खुशी होगी कि अगर आप आने वाले हमारे जो इवेंट्स हैं उनमें हमसे कनेक्ट होते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल है, आप उन दिए गए नंबर या वेबसाइट से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। So good evening, everyone. Thank you so much for joining.